Assalamualaikum grade 10. How are you? Faiza Nadeem here and I am here with the continuation of Unit 7 Little by Little One Walk Far. आज हम क्या करेंगे इस यूनिट का? पहले हाल चाल पूछ लें. I hope you are good. I hope आपने मेरे पिछले लेक्चर के बाद ट्रांसलेशंस और क्वेश्चन आंसर्स कर लिए होंगे. ठीक है? नहीं किए तो अभी जाओ, पहले काम करो फिर वापस आना. चलो चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं आज हम क्या करेंगे. Alright, since it is second lesson of Little by Little One Walk Far, a second reminder that we had done the translations and question answers in our first lecture. अब ये हमारा second lecture है और इसमें हम करेंगे vocabulary meanings ढेर सारी और grammar part. ठीक है? जो ग्रामर पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन के बाद में, यूनिट के बाद में, वो करेंगे और वोकैबुलरी मीनिंग्स. आपके सब्जेक्टिव पेपर का पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करता है और वो वोकैबुलरी मीनिंग्स के बारे में ही है. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके कॉम्प्रिहेंशन में रिगार्डिंग वोकैबुलरी मीनिंग्स है, इट्स ऑन द बोर्ड. The question is write meanings of the following words and I've written the words and their meanings. I'll just read it out to you and explain a few meanings if I think or you think is difficult for you. ठीक है? तो सबसे पहले मैं vocabulary को read भी करूंगी और side by side explain भी कर दूंगी. Circumstances, conditions. ठीक है? बहुत सारे circumstances होते हैं, हालात होते हैं, conditions होते हैं in which you find yourself into, whether you like it or not. ठीक है? तो circumstances, conditions. Participant, a person who participates in something. ठीक है? पार्टिसिपेंट कौन होता है? कुकिंग शो का भी पार्टिसिपेंट हो सकता है, रनिंग का भी हो सकता है और क्रिकेट का भी हो सकता है. तो whoever participates in any event in something is a participant. Priority, most important thing. आपकी प्रायोरिटी इस वक्त क्या होनी चाहिए? आपकी प्रायोरिटी इस वक्त एग्जाम्स होने चाहिए. ठीक है? Contest is a competition. ठीक है? You must take part in any contest that is available in order to make you excel or in order to help you be more mature, more sensible and independent. Preceding, prior. We cannot tell about the preceding events. Excel, best होना, surpass कर देना, छोड़ देना सबको. All of you must excel in your academics. ठीक है? I've given you the sentences and I've discussed the meanings with you. ठीक है? उर्दू में भी समझा दिया, इंग्लिश में भी समझा दिया. 3-4 मीनिंग्स रहती हैं. चलेंगे सेकंड बोर्ड पे. 3-4 नहीं, 2 ही रहती थी. Alright, the next is motivation. The unit Little by Little One Walks Far gives me a motivation to work hard and succeed in life. ठीक है? मोटिवेशन का मतलब होता है स्टिमुलस, आपको स्टिमुलेट करना, आपको एक्टिव करना. ठीक है? फाइनेंशियली, मनी वाइज. ठीक है? You need not to be financially stable in order to participate in multiple events of life. ठीक है? Financially, monetarily. ठीक है? पैसे वाइज, मनी वाइज. इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव बीन गिवन अ फ्यू फ्रेजेस एंड यू आर आस्क्ड टू राइट डाउन देयर मीनिंग्स. वो फ्रेजेस और उनकी मीनिंग्स मैंने बोर्ड पे लिखी हैं. आपने ये करना है कि आपने कॉपी डाउन करना है. बाय दिस टाइम आई होप आपने वोकैबुलरी मीनिंग्स और साइड बाय साइड उस वोकैबुलरी के सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं. 5 मार्क्स के सेंटेंसेस आते हैं, फुल ऑन 5 मिल जाते हैं अगर कोई ग्रामर एरर या सिंटेक्स एरर नहीं है. Phrases and their explanation. A long bumpy ride, hard and difficult times. Earned first position of high rank. ठीक है? Life is a long and bumpy ride and we have to ride it. ठीक है? Earned first position with his perseverance and hard work. He earned the first position in board exam. A well-rounded student, versatile student. I was a well-rounded student throughout my academic life. Along with a group of other students having same ideas as others. ठीक है? Ali, along with a group of other students, was of this opinion that we should
set up a cricket match, look forward to it, expect, I look forward to my upcoming birthday, made it this far, seek the truth, with my hard work I've made it this far and I hope to achieve the best in the upcoming life. phrases बताए, उनकी मीनिंग्स बताई, उनके सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करके बताए, सब नोट डाउन करना है, ठीक है. नेक्स्ट इज ग्लॉसरी. अब ग्लॉसरी नो डाउट आपकी बुक पे मौजूद है, ठीक है, लेकिन स्टिल मैंने ग्लॉसरी क्यों लिखी है? मैंने इसलिए ग्लॉसरी लिखी है ताकि आपको वोकैबुलरी मीनिंग की इम्पोर्टेंस का एहसास हो जाए. बिल्कुल ओवरलुक नहीं करना, बिल्कुल उसको रिलैक्स नहीं लेना. हमने वोकैबुलरी जितनी भी है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है. ग्लॉसरी कहती है करियर, which is a job or series of related jobs that you do. I want to have a prospering career. ठीक है, I want to pursue the career of my life. Circumstances, halat, situations. I've made a sentences of circumstances below. Life puts you into certain circumstances that you don't like, but you have to face them. Contest, competition, we must take part in all the contests that come across our lives. ठीक है, let's move on to the next board. Excel, to be better than others. In order to excel in our life, we all must work hard. Motivation, Qaid-e-Azam is the motivation of my life. I want to be as successful as he was. Participant, to take part in something. The participant of the cookery show was not keen or was not good or was not up to the mark. ठीक है? Priority, most important thing. My priority in life is to do better than everybody else. ठीक है? इतने सारे वोकैबुलरी मीनिंग्स और इतने सारे सेंटेंसेस मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाए. एक एक लफ्ज के 3-3 सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट किए हैं मैंने. आपने इन सब को इग्नोर नहीं करना, आपने इन सब को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. अच्छा, अब हम आते हैं ग्रामर पार्ट की तरफ. एक ग्रामर पार्ट है हमारे कॉम्प्रिहेंशन यूनिट के बाद. सबसे पहले इनडेफिनिट प्रोनाउंस. अगर आपको मेरा प्रोनाउंस वाला लेक्चर याद होगा तो आपको ये याद होगा कि मैंने इनडेफिनिट कहा था अननोन सी चीज को. और इनडेफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं जिनका सब्जेक्ट या जिनका जो नाउन होता है वो अननोन होता है. कैन बी एनीबडी, ठीक है, नॉट स्पेसिफिक एनी पर्सन बट कैन बी एनी जनरल पर्सन, राइट. सो वो इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं. और यूजुअली इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर कंसिडर्ड एज सिंगुलर. ठीक है, मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, वहां फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके बुक के अंदर. मैंने उनके सारे सेंटेंसेस लिख के उनके सारे आंसर्स लिखे हैं. मैं आपको 1 by 1 रीड भी करती हूँ, एक्सप्लेन भी करती हूँ. आप अपनी बुक में कॉपी डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए. एवरीबडी एंजॉयज अ गुड मूवी. एवरीबडी, ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन एंजॉयज अ गुड मूवी. अब इट्स अप टू देयर टेस्ट कि कौन सी मूवी को वो ज्यादा एंजॉय करते हैं. डज एनीबडी हैव द टाइम. ठीक है, एनीबडी हु इज सिटिंग इन द रूम. अब यहाँ डज आया है इसलिए यहाँ हैव है. ये anybody is a singular noun, I've told you. लेकिन since this auxiliary verb has does, so we have to use the plural auxiliary verb along with the singular auxiliary verb. Confuse नहीं होना कि यहाँ पर have है तो ये plural है, ये singular है, याद रखना. ठीक है. One sang while the other played the guitar. ठीक है. Nobody knows the trouble we have seen. किसी को कोई अंदाजा नहीं है उस ट्रबल का जो हमने देखा है. The secret was known by many. A lot of people knew the secret. No, the secret was known by few. मैंने आपको कहा है कि जहां काउंटेबल नाउन्स होंगे वहां few वर्ड यूज होगा और जहां अनकाउंटेबल नाउन होंगे वहां little. ठीक है, तो यहाँ आपने देखा है few. Obviously you can count people. As many people there are, you can count all of them. So for the countable noun, the pronoun is few. Mathematics is hard for some. अब ये सारे indefinite pronouns हैं.
ठीक है, इनका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, इनका कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं है. अब ये एनीबडी, एवरीबडी, सम, वन, अदर, फ्यू, इनमें से किसको आप क्या नाम देंगे? कुछ भी नहीं. तो दे आर ऑल indefinite pronouns. Keep the lecture of indefinite pronouns in your mind. Let's move to the last word. Alright, surely you recognize somebody in the party. ठीक है, surely you must recognize somebody. Somebody, anybody. Is there anything that I can do? कुछ आपके लिए कर सकती हूँ मैं. Is there anything that I can do? Anything. It does not have a specific name to it. ठीक है. Next is subject and verb agreement. ठीक है. अब इसमें आपके पास क्या करना है, आपने उस प्रोनाउन के साथ उसके वर्ब को agree कराना है. आपकी बुक में ऑप्शंस दी हुई हैं and you have to choose one. मैंने करेक्ट आंसर बोर्ड पे लिखा है, आप मेरे साथ साथ अपनी बुक को सॉल्व कर लीजिए और इसको ज़हन नशीन कर लीजिए. साइड बाय साइड में आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ. ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज वन वोट. ईच मेंबर, ठीक है, एक, हर खानदान का हर फर्द, सिंगुलर, तो क्या वर्ब आएगा? हैज. वन ऑफ द बॉयज ईट्स पिज्जा एवरी वीक. वन ऑफ द बॉयज, दो बॉयज हैं उनमें से एक, ठीक है, वन ऑफ द बॉयज. चार बॉयज हैं, चार बॉयज हैं उनमें से एक. पांच बॉयज हैं उनमें से एक, ठीक है. ईट्स पिज्जा एवरी वीक. बोथ ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट. अब बोथ ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, बोथ ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट नहीं होगा. बोथ का मतलब होता है दो, ठीक है, तो दोनों आंसर्स करेक्ट है, इसलिए क्या आएगा? आर. A few of the staff were gone today. A few का मतलब होता है कुछ. Staff is a collective noun for a group of people who work in an office. ठीक है? A group of people who work in an office have a collective noun that is called as staff. Staff को हम consider करते हैं singular noun, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं a few of the staff. कुछ उस staff में से. तो यहां पर ये प्लूरल हो गया है, इसीलिए were gone. All the animals run when they are scared. Animals, plural noun, plural verb, run. Someone has his own thoughts. Someone, singular noun. So singular auxiliary verb, which is has. You know that others have tried this. Others. अब others cannot be singular person. Others can be many. ठीक है, I'm here. All of you are others. So others can be many. You know that others have tried this. They have tried to attempt this question. ठीक है, so others plural. अब हम आ जाते हैं लास्ट एक्सरसाइज पे जो बुक की एंड में दी हुई है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. टेंसेस का जिस वक्त लेक्चर किया था मैंने बताया था कि परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी होती है प्रेजेंस ऑफ हैज और हैव. और अगर प्रेजेंट है तो वो हैज और हैव है, और अगर पास्ट है तो हैड है, और फ्यूचर है तो विल या शैल हैव है. ठीक है, प्रेजेंट. हाउ लॉन्ग हैज ही लिव्ड, उसमें क्या दिया हुआ है आपकी बुक में? हैज, हैव और लिव. ठीक है, तो आपने उसका करेक्ट टेंस लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, तो सिंस इट्स ही तो सिंगुलर नाउन है. सिंगुलर नाउन है तो क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब. वर्ब के अंदर एस होगा और उसके साथ जो आपका रूट वर्ब है, जो आपका मेन वर्ब है, उसका पार्टिसिपल. हाउ लॉन्ग हैज ही लिव्ड. ठीक है, आई हैव स्पोकन चाइनीज फॉर 20 years. याद है मैंने आपसे कहा था ये रूल मत पूछिएगा, लेकिन आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है. तो आई हैव. ठीक है, स्पीक का थर्ड फॉर्म कौन सा है? स्पोकन. I have spoken. ठीक है, has Alia flown in an airplane before? Alia singular noun, has singular verb, और उसके साथ जो हमारा main verb है fly.
fly, flew, flown, ठीक है, उसकी थर्ड फॉर्म. Shan has not gone to lunch yet. Shan singular noun, ठीक है, उसके साथ जो auxiliary verb लगेगा, perfect tense लगेगा, वो singular verb लगेगा. verb में s है. अब वो नहीं गया, it's the negative one, it's the negative sentence, ठीक है. Shan has not gone, go, went, gone, irregular verb. So the third form of go is gone, gone to lunch yet, ठीक है. Fifth sentence, our class has taken a field trip this year. Class has, क्यों class के साथ has? क्लास में तो 30 बच्चे भी होते हैं, 40 बच्चे भी होते हैं. क्लास के साथ has बेटा क्योंकि क्लास एक कलेक्टिव नाउन है. क्लास एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि class is the noun for a group of students who sit in the same roof, study in the same room with the same teacher. ठीक है, आपका एक सेक्शन होता है, उसमें जितने बच्चे होते हैं वो आपकी क्लास है. इसलिए क्लास इज ए कलेक्टिव नाउन और उसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज. ठीक है, टेक, टुक, टेकन, थर्ड फॉर्म ऑफ टेक. रिमेंबर, इर्रेगुलर वर्ब. Where have they moved to? They, plural noun. ठीक है, so उसके साथ क्या लगेगा? Plural verb, have. Move, moved, moved. Regular verb. ठीक है, last question. Javeria has asked that question 4 times. Javeria is a singular noun. कौन सा verb लगा? Has. ठीक है, ask, asked, asked. ठीक है, regular verb. और she has asked this question 4 times. याद होगा, I hope आपको मेरा participle वाला lesson, आपको मेरा tenses वाला lesson, ठीक है. हमने रिवाइज किए indefinite pronouns, हमने रिवाइज किए present perfect tense, हमने कॉन्सेप्ट रिवाइज किया सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब. हमने रिवाइज किया कि आई इज अ स्पेशल ओकेजन, आई इज अ स्पेशल वर्ड और अ प्रोनाउन विद विच यू यूज द प्लूरल नाउन. ठीक है, हमने बहुत सारी वोकैबुलरी मीनिंग्स की और उनके सेंटेंस भी कंस्ट्रक्ट किए. आई होप कि आपने साइड बाय साइड सेंटेंसेस लिखे होंगे, वोकैबुलरी मीनिंग सॉल्व की होगी और ये सारा कुछ अपनी बुक पे अपने साथ साथ कर लिया होगा. बहुत ध्यान कीजिए, साथ साथ पढ़ते रहिए. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे. अल्लाह हाफिज.